So hey there, you can just switch off this video right now because it's not for you. I'm just shooting this video for my future self. You know that New Year thing is everywhere. That 2025 is coming to an end, and kal se 2026 will begin. So I just thought to shoot me virtually in the year, signing off from year 2025, दैट जब भी मेरा फ्यूचर वर्जन चाहेगा मुझे देखना, सॉरी चाहेगी जब मुझे देखना, राइट? सो वो इस वीडियो को देखे, दैट इन 2025 में आई वॉज लाइक दिस, आई एम लाइक दिस, राइट? So I used to journal each and every new year in my school, 7 years of my school diary, right? But I guess 2023 के बाद, 31 दिसंबर 2023 के बाद मैंने उसमें कोई न्यू ईयर का कोई जनरल लाइक कुछ मैंने जनरलाइज नहीं किया उसमें। वाई? बिकॉज 2023 में सब रेजोल्यूशंस की बात करते हैं। मैंने भी लिखे थे उस डायरी में कि मैं इसमें इम्प्रूव करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं और ऐसा बनूँगी, या मैं मुझे वो चाहिए, मुझे वो हासिल करना है, मुझे वो ड्रीम को पूरा करना है, या मैनी थिंग्स लाइक दैट, राइट? एंड दैट डिडंट हैपन, राइट? वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। सो आई स्टॉप्ड writing about the New Year's in my diary, and 2023 के बाद मैंने 2024 में नहीं लिखा, हाँ अबाउट 2025 में, बट अभी 2025 एंटर है, राइट? सो दिस इज मी वर्चुअली in 2025. So this video is for my future version. So hey, my future version, I know that you must be full of self love, full of confidence, maybe full of your people, maybe full of the friends you have always dreamed of in your life, and you must be full of that feeling of you being you, because this year's made you strive for that so hard, like the year 2025 started with, a hope, uh, because on well, right, at the very starting of the year 2025 you were a part of a national level competition. You did well in that, right? So somehow that gave you a little confidence in your life, and you thought that the year 2025 gonna be the best year of your school life, or this year will give you so many things. This year we'll appreciate with so many good things, and you will find your lost courage, lost confidence, and you will be you will lose that anxious you and everything that you thought of. But this is me on the very last day of 2025. ऐसा कुछ नहीं हुआ अगेन। तुमने माइंड में सिर्फ सोचा था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2025 में सबसे बेस्ट चीज़ तो वो हुई है, स्कूल से बाहर निकला, ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ स्कूल, दैट is 29th of March. You came out from that one school, and तो उस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार था तुम्हें कि तुम उससे बाहर निकलोगी। But what strange thing happened, and that was कि you cried on that day. I still don't know why you cried on that day. Maybe because you have lost yourself in those 7 years of school life, or maybe you were constantly telling yourself कि that school didn't give you that much what you have deserved in your life, or maybe you know you were feeling those things, what everything you have survived in that place, or everything like that. So 29th of March, yeah, it's the most luckiest day from the year 2025, and you thought that day that अब यहाँ से निकलने के बाद I'll be so happy in my life would be gonna be so amazing, and I'll work hard for Jay and everything, and I'll मैं खुद को, the real मैं को मैं फिर से शायद पा लूँगी, right? But yeah, that didn't happen. In the very initial days of JEE preparation,
You thought that चीज़ें सही जाएगी, but school used to trigger you a lot, You initially thought that, स्कूल चले जाएगा, तुम्हारे अंदर से। बट वो स्कूल तुम्हारे अंदर से शायद कभी जा नहीं सकता, अभी तक दैट स्कूल इज़ स्टिल एम्बेडेड इन योर हार्ट, Often in your life, your mind decides you all that haunting memories, all that ignorance, all that loud voices, all that statements which people gave you. When they literally told you कि देख तू तो लड़ने भी अकेली आती है, तेरे साथ तो लड़ने के लिए भी कोई नहीं है, या when they told you कि तू तो हमेशा अकेली ही रह जाएगी तेरी लाइफ में, और तुझमें बहुत ये है, तू बहुत वैसी है, तुझमें बहुत ये है, and everything, so that thing triggers you now, right? वो तुम्हारे 2025 के वर्जन को भी ट्रिगर करती है, बट somehow somewhere she, उसने सीख लिया है, how to deal with this thing. So at the very beginning of this year 2025, well, स्कूल से घर आए, फिर घर से स्कूल गए, फिर बोर्ड्स का वो पहले का जो भी 8-10 दिन पहले से दिमाग ख़राब हुआ, फिर वी केम बैक होम, फिर उन टीचर्स ने तुम्हारी काउंसलिंग की जिन्होंने तुमसे कभी स्कूल लाइफ में नहीं पूछा व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, उन सब ने तुमको बोला कि घर जाके चीज़ें बिगड़ जाएंगी, यहीं रहो सही रहेगा, ऐसा वैसा। देन कुछ टीचर्स के बारे में तो नहीं बात करते, क्यों याद दिलाना है खुद को, राइट? सो दैट थिंग हैपेंड, यू वेंट टू स्कूल अगेन, एंड हर एक पेपर के पहले यू क्राइड हार्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम अटैच हो यार चीज़ों से, जो चीज़ें तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स हैं, या कहीं ना कहीं जो तुमको ऐसा लगता है कि तुम लाइफ में हासिल कर सकती हो, उन सब चीज़ों से यू यूज टू बी सो अटैच, नाउ अभी भी है थोड़ा बहुत, पर जाने में टाइम लगेगा। तो तुम अटैच थी तो तुमको बुरा लगा, हर एक वाइवा में क्या बेइज्जती करवाई है डूड तुमने अपनी, बट और हर वाइवा के बाद लगा है कॉन्फिडेंस तो डाउन होता ही है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो चला ही जाता है, क्योंकि तुमने सीख मतलब तुम्हारे अंदर भी डेवलप हो गया, राइट? स्कूल ने डेवलप किया था, तो हर वाइवा के बाद दिमाग खराब हुआ, राइट? फिर हर बोर्ड एग्ज़ाम के पहले रोना आया, एंड वी वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि जे का क्राइटेरिया क्रॉस होगा, बट फॉर्चुनेटली भगवान के साथ में जे का क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया, राइट? तो फिर एग्ज़ाम के पहले भी यू वर सो एंशियस, तुमको लग रहा था क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा, और फिर से 12th देना पड़ेगी देना पड़ेगी देना पड़ेगी, फिर तुम वही तुम्हारा दिमाग हैवी फील करता था, तुम हैवी फील करती थी, समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड द थिंग इज़ दैट यू डिडंट टोल्ड अबाउट दिस टू एनीवन आउट देयर, ना तुमने फैमिली को बताया, बिकॉज यू इनिशियली न्यू दैट, राइट? कि फैमिली को बताने से उनके ऊपर प्रेशर आएगा, फिर वो सोचेंगे, फिर यू डिडंट टोल्ड दिस अबाउट thing to anyone, and you have survived this all by yourself. So I am proud of you. Somehow, I can say that I am proud of you, not regarding the things कि academically तुमने अच्छा किया है और कुछ अच्छा किया लाइफ में, बट उस चीज़ के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव केम दिस फार इन योर लाइफ, बिकॉज बेबी यू हैव लिटरली सर्वाइव्ड so much things in your life that just that just क्या होता है ना वो कि किसी चीज़ को सोच के तुम उसमें से बाहर नहीं आ पाते, यू सर्वाइव दैट थिंग्स इन योर लाइफ। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, नॉट दैट डे, दोज डेज when you used to feel often to just end everything, just to end this life, just to end you, just to end everything from your life, just to end yourself, just to eliminate yourself from your life. And I still don't know how much you cried, you know like how much you have cried in your school, and all the depressing things are depressing you, and how you used to look so frown, and so just I guess so difficult to tell everything, here. But I hope कि जब भी तुम मेरा फ्यूचर वर्जन हो तुम, राइट? तुम्हारे अंदर से बातें निकलेगी, और नहीं भी निकले तो भी तुम बेटर उसमें होगी, राइट? तुम खुद को बहुत प्यार करोगी, तुम तो खुद में बहुत कॉन्फिडेंट होगी, एंड तुम शायद सब चीज़ें वो अचीव करोगी लाइफ में ना जो मैंने सोचा है।
समटाइम्स आई डू फील सैड अबाउट माई यंगर वर्जन। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं उसको डिसअपॉइंट करती हूँ, या वो और मेहनत करना था उसको, या और भी कई सारी चीज़ें रही। बट जब तुम्हें आगे चल के लाइफ में ऐसा फील होगा ना कि मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, या मैं और किसी चीज़ में बेटर कर लेती, सो डू रिमेंबर दिस डूड कि आई हैव सर्वाइव समथिंग, जो कि लाइक हमको तो पता ही होगा, राइट? सो आई हैव सर्वाइव समथिंग यार, लाइक मैं बहुत रेसिस्ट करती हूँ उसके बारे में सोचना, बट कभी कभी आ जाता है तो लाइक कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है जो तुम्हारे अंदर है और उसको निकलना शायद बहुत मुश्किल रहता है। सो दैट, येस, दैट यूज टू ट्रिगर मी समटाइम्स, बट ऐसे ऐसे थोड़ा घर ने ना थोड़ा हील कर दिया है, थोड़े टाइम घर पे रह के, थोड़े अपने लोगों के साथ रह के, थोड़ा शांत इन्वायरमेंट में रह के, कहीं न कहीं तुम्हारे माइंड को थोड़ी शांति मिली है। तो हम उस चीज़ सब चीज़ों से बाहर आ गए हैं, बट चीज़ें हमसे बाहर नहीं है, राइट? ऑल्सो सेकंड बेस्ट थिंग व्हाट 2025 गिव अस इज़ दैट कि इस 2025 ने हमें एक ड्रीम दिया है, जो कि ड्रीम हमारा नहीं है, द ड्रीम हमारा है, बट इट्स नॉट फॉर आवर वेलफेयर। ये हमने सोचा कि जो हमारे साथ हो रहा है या जो हमारे साथ हुआ है, वो बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ हो रहा है, सो क्यों ना डू कनेक्ट विद देम एंड उनके साथ बात करें, उनके साथ कॉन्वर्जेशन करें। सो 2025 gave us this dream and इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, and as you know we don't believe in manifestation, right? Because we हमने अभी तक लाइफ में we have manifested something somewhere in our life, वो ऐसा हुआ नहीं है, right? But as आजकल manifestation भी बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है, so I'm manifesting this to this camera। मैं तुम्हें बोल रही हूँ मेरे फ्यूचर वर्जन को कि लेट्स से 10 साल का एस्टिमेट लेके चलते हैं, ओके? आज से 10 साल बाद हम एक बहुत बड़ी टीनेज कम्युनिटी के पार्ट होंगे, एंड जो हमने सोचा है, जो ड्रीम है हमारा, वो छोटा सा जो हम हमें हमें ड्रीम दिया है इस 2025 में, हम उसको 90% तक हम उसको पूरा करेंगे, ओके? 10% तो ठीक है, तो हम 90% तक उसको पूरा करेंगे, उसको ले जाएंगे अनदर लेवल तक। और हम बहुत सारे टीम्स को हेल्प करेंगे, लाइफ की सब चीज़ों से बाहर निकलने में। वो भी, हाँ, पूरा नहीं रिवील करते, राइट? हमें तो पता ही है, राइट? सो ये बात है। बाकी 2026 भी बहुत इम्पोर्टेंट ये होने वाला है यार, जेई है नेक्स्ट मंथ, एंड एज ऑलवेज I am feeling anxious, I am anxious about that because, you know, that last day of school life में प्रिंसिपल को I told प्रिंसिपल कि 12 का तो मत एक्सपेक्ट करो, बट अगले साल आई वोंट गेट रिजल्ट के साथ कॉलेज का रिजल्ट, बट आई डेंट थॉट दैट डे कि that year would end like this, but it's coming to an end, like, yeah, the very last day of 2025। एंड अगले साल मुझे लिटरली नहीं पता, जेन्युइनली नहीं पता कि जे हमें क्या देगी, रिजल्ट क्या देगा। ऑब्वियसली सपने देखने की आदत है हर बचपन से, तो ड्रीम्स तो हैं बिग, बिग ड्रीम्स, या सपने तो हैं बड़े, बट एक पीछे वाला थोड़े 3 लेटर्स थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे हैं ना, थोड़े से बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, राइट? या सो डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट मुझे नहीं पता क्या होगा। येस, यू हैव वर्कड हार्ड, तुमने पढ़ा है, चीज़ों को समझा है, जाना है, बट वो चीज़ तुम्हारे अंदर से कभी बाहर नहीं निकली है, अभी तक तो नहीं निकली है कि लाइक वो चीज़ अभी तुम्हारे अंदर से तुम्हारे बाहर नहीं निकली है कि यू कैन स्टिल बी दैट प्रीवियस यू अगेन, or not that previous you, but you can really transform yourself into another person, because there is something which haunts you every time, there is that feeling of, that got defeated by people often in your life, that haunts you, that literally haunts you every time. And dude, yeah, just it's so difficult, just to recite all those things, and just to like literally shooting this video, for my future version is the most, like that kind of thing, Yeah, I just don't know, So, okay, just switch the topic then. Yeah. Yeah, so I'll tell you about YouTube, okay? So,
As I told you, I was feeling so drawn in myself. I was so doubting myself. My mind used to feel so heavy in that whole rave preparation. So I thought, start something new because there must be so many people out there who must be same as I or who must 2 minute यार. Yeah, that who must be, मतलब मेरे जैसे बात सेम हो गया, उन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ देखा होगा. So कहाँ थे यार? Wait a minute. Yeah. So I thought about the people, I thought about the teenagers, and I thought to just, interacting with them, कुछ जैसे लोगों से interact करो through YouTube, because we always, like that dream, I'm telling you about that dream, that how it started. So I just thought to, just connect with people. But फिर I thought कि करेंगे कैसे, Then I chose YouTube, कि through YouTube I'll be connecting to all the failures out there, इसीलिए I named our channel The Failed Eye. और भी बहुत सारे रीजंस हैं व्हाई आई नेम्ड इट द फेल्ड लाइफ, बट स्टिल ताकि थोड़ा लोग उससे वो हो पाए, सो I started, I posted my first video on 17th of June 2025 with that hope कि उससे मुझे I'll get a reach, मतलब अच्छे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे टीम शायद से कनेक्ट हो पाए. But that video literally reached like 30 views बहुत स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद फिर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, मैंने सोचा था ना कि वो वीडियो कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में थोड़ा ओके फील करवाएगा या ऐसा. अब ठीक है, हम थे ऐसे, क्या करें, द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस ईयर. सो आई थॉट लाइक दैट, बट दैट डेंट हैपन, उसके बाद आई वॉज सो फुल ऑफ थॉट्स, सो जस्ट उनको कहीं ना कहीं निकलना वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई वॉज नॉट इन टच विद एनी वन, नो वन लाइक चेकड ऑन मी, और एक तो जो भी फ्रेंड्स थे बोलने के स्कूल के, वो भी didn't checked on me. So I was so damn king, क्या बोले वो थे. So I posted second video on YouTube and उसके बाद I stopped posting, because I thought that कि अब I'm not gonna सक्सीड इन एनी थिंग, अब मैं जो भी चीज़ को स्टार्ट करूँगी वो नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, बिकॉज आई एम जस्ट नथिंग एंड एवरी थिंग, हर वो चीज़ जिसने मुझे फील करवाया कि लाइक अब मैं अपने जो वो टाइप के फ्रेंड्स हैं ना, दैट फ्रेंड्स जो जिन लोगों ने मुझे बोला था ना कि तू लाइफ में हमेशा अकेली रह जाएगी या ऐसा या वैसा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके दे वॉन इन स्कूल टू, और शायद अभी भी ठीक है उनकी बात सही निकलेगी, सो आई स्टॉप क्रिएटिंग वीडियोस, ओके. बट उसके बाद क्या हुआ, लाइक नियरली राखी के टाइम पे वी वेंट टू नानी का घर, ओके. एंड नानी का घर पे सब लोगों के साथ रहे, लाइक थोड़े बहुत दिन को जिया, सो ऐसा लगा ना कि शायद लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हम उसको बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ ना सब लोगों के बीच में तुमको फिर से ऐसा लगा कि तुम वही बच्चे हो, यू आर स्टिल दैट चाइल्ड एंड यू हैव टू लिव योर लाइफ विद द फुलनेस, बिकॉज शायद 3 साल से मैं गई नहीं थी नानी के घर. सो नानी के घर जाने के बाद थिंग्स हैव चेंज, वहाँ पे जाके तुम भूल गई थी कि यू आर अ जी एस्पिरेंट, या तुमको जेई देनी है, तुम्हारे साथ ये हुआ स्कूल में, तुम्हारे साथ वो हुआ, तुम्हारे साथ वैसा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, राइट. सो वहाँ पे जाके थोड़ा सा मेंटल पीस फेल्ट, मतलब ओके हुआ, वहाँ पे यू फेल्ट गुड. एंड वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा ये अंदर से ठीक लगना स्टार्ट हुआ कि ओके, राइट. बट उसके बाद भी तुमने यू सर्च इट ऑन गूगल कि हाउ टू गेट रीच, बिकॉज दानी का घर ने भी ठीक है तुमको सही किया था एक अदर सेंस में, बट तुम्हारे अंदर की बातों को जो कंसिडरेशन चाहिए था, तुम्हारे अंदर की बातों को जो रिलेटेबल लोग चाहिए थे, राइट. वेट अ मिनट. ओह! ठीक है, तो वो तुमको मिल नहीं रहे थे, ओके. सो यू वर सो एंग्ज़ियस इन योरसेल्फ, तुम यू यूज्ड टू बी सो डिप्रेस्ड ऑल डे लॉन्ग, राइट. सो यू सर्च इट ऑन गूगल कि कैसे लोगों की रीच लाएँ, ठीक है. फिर गूगल सजेस्टेड कि थंबनेल सही बनाओ, एंड तुम्हारे पास टाइम भी नहीं होता था यार, क्योंकि पढ़ना अलग रहता था, कहाँ थंबनेल क्या बनाते हैं, बट फिर भी आई गेस स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोज़ में यू पुट दैट थंबनेल ऑन दैट वीडियोज़ इन ऑर्डर टू गेट रीच, एंड उसके बाद भी यू डिडंट गॉट दैट. उसके बाद अगेन यू फेल्ट लाइक सो दैट डिप्रेसिंग इन योर सेल्फ, फिर यू स्टॉप क्रिएटिंग, लाइक यू डाउटेड योर सेल्फ ऑन द एटमोस्ट लिमिट, ठीक है. यू लाइक literally humiliated yourself in every possible sense, okay. Then after that your just heart told you,
Like, yeah, your just heart told you to just shoot a video, whatever you are thinking about life, whatever you are thinking about yourself, whatever you want to tell this to this camera or whoever, and just post it. Okay. So uske baad se I shooted my feelings on camera. I shooted everything what I was going through on camera. And कहीं ना कहीं कैमरा से बात करते करते मैं खुद को ही ऐसे सेंटेंसेस बोलने लगी थी जहाँ पे ना मुझे कहीं ना कहीं होप दिखने लगी। लाइक मैं बात करती थी कैमरे से, बट कहीं न कहीं कुछ चीज़ें मेरे उसमें ही आ गई थी। सो वहाँ से वी हैव स्टार्टेड एंड धीरे-धीरे people connected with us. So I we have received 3 stories, and I named that series The Unheard Echoes. जो कि echoes थी किसी इंसान के अंदर बहुत क्या बोलते हैं echoes को, what does that mean in हिंदी? क्या गूंज आवाज़ गूंज रही थी, बट किसी ने उन्हें सुना नहीं, या कोई वहाँ था नहीं उन्हें सुनने के लिए, नो वन was there to understand them, or to just listen to this echoes. So I started this. So अभी we have received only 3 stories. So उसको I have named the Unheard Echoes, our series name. उसमें 3 real stories है। उसको आई हैव पोस्टेड। एक और थी बट उसको मैंने नहीं पोस्ट किया, मतलब मुझे मना बोला था किसी ने। हाँ, वो भेजने वाले ने ही मना बोला था। उसके अलावा वी हैव रिसीव्ड लाइक 5 से 6 emails regarding things or regarding everything, regarding second droppers and like there are second droppers, there are droppers, there are students of class 12th, some of them are from 10th, and many people, and they've shared their experiences. Some of them are in college, they've shared their life experiences, उनके साथ क्या हो रहा है, what they went through, and many of them appreciated you for this thing what you have started, right? So that literally healed you in a way. We are not fully healed yet, right? But there is some part of us that has healed in a way. So a big round of applause to all those 125 people who are there, who made you feel understood whenever you need it. And there like there are literally 125 people that are connected to us right now. They may don't listen to you or whatever they are, but you have 125 people with you. Okay, so that's our victory for this. Oh, 2025, 125. Oh my god, I just realized this right now. So yeah, 2025, 125. Yeah. So we do have 125 people connected to us right now, and there are so many people who have gone through बहुत ज़्यादा बुरा, मुझसे भी बुरे situations. So I have covered them एक videos में, and I have posted it here. And so 2025 gave me this, a dream to just start this channel, just to make a space for each and every one who has ever felt so unheard in their life. So this was the, this is the most, loveliest thing which, 2025 gave us. And उसके बाद तो यार, मतलब, as I told you, we are not fully healed yet, right? But we are just trying to, you know, get out from all that things that happened to us and everything. एंड लगता है लाइफ में कि गिव अप कर देना चाहिए, जिस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, या लाइफ पे ही गिव अप कर देते हैं। बट आई मस्ट से कि यार, I've came this far, right? And that was so fucking difficult for me, dude. Surviving all those things, and just ah, that level of ignorance, that level of humiliation, that level of I still remember that scene. Not that particular scene, those scenes of our class ninth, when both sections used to combine, and they used to be 4 girls sitting at a single bench, but there was only my bench in the whole class that used to remain all empty. Like no one has ever wished to just sit beside me. 2 क्लास कंबाइन होने के बाद भी 80 बच्चे एक क्लास में, बट मेरी सीट पे मैं अकेली रहती थी। सो पूरी क्लास में हर एक सीट पे एक बेंच पे 4 गर्ल्स बैठी है।
बट मेरे पास कोई नहीं बैठता था, एंड टीचर समहाउ टोल्ड देम कि यार इसके पास आके बैठ जाओ, तो फिर वो आती थी लड़कियां फेस फेस बना के कि इसके पास बैठना। आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड, मे बी उनको डर लगता था कि यार इसको टीचर का अटेंशन मिलता है तो हमको भी मिलेगा, टीचर्स हमसे क्वेश्चन करेंगे, या कुछ और ही बात थी। जस्ट कोई बात नहीं, हो गया। सो आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग, और दैट सीन लिटरली हॉन्ट्स मी टिल नाउ यार डूड। ऐसा लगता है कि यू हैव सर्वाइव्ड सो मच एज बीइंग अ टीनेजर, बट ठीक है, यू हैव सर्वाइव्ड दिस मच तो कोई बात नहीं, अब तो हो गया, राइट? एंड दिस ईयर वाज लिटरली थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा टफ, नॉट थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, लाइक, बट ठीक है यार, अब तो आदत सी हो गई है। सो टू माई फ्यूचर वर्जन वॉचिंग दिस वीडियो, डूड तुम बहुत अच्छा करोगी लाइफ में, ओके? एंड तुम खुद को बहुत प्यार करना, राइट? तुम खुद को बहुत प्यार करना, तुम खुद में बहुत कॉन्फिडेंट होना, और तुम वो सब ड्रीम्स को पूरा करना, जहाँ तक भी तुमसे होगा, ठीक है? मैं कभी तुम्हें जज नहीं करूँगी ना, तुम कहीं मुझे करना, ओके? तुम उन सभी चीज़ों को हासिल करना है ना, जो तुमने कभी ना कहीं सोचा था, और जहाँ तक हो पाए वहाँ तक करना है, राइट? और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई तो इस वीडियो को यहाँ तक देख ही रहा होगा, राइट? सो हम वो सब चीज़ तो नहीं रिवील करेंगे, क्योंकि वो तो हमारी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, राइट? तुम्हारे और मेरे बीच में, और वो हमें याद भी रहेगी तब तक, राइट? सो आई गेस इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो राइट नाउ, राइट? आई एम स्टिल सेइंग दिस टू यू कि मुझे नहीं पता है 2026 क्या देगा, कॉलेज देगा नहीं देगा, क्या देगा। समटाइम्स आई डू थिंक कि आई टेक सेकेंड ड्रॉप, आई बी सेकेंड ड्रॉप, बट फिर डर भी लगता है यार, कि सिलेबस की बात नहीं है यार, वही सब फिर मेंटल चीज़ें हैं, और क्या क्या नहीं, और फिर वो सोसाइटल चीज़ भी आ ही जाता है। हाँ, बट खुद में इतना पॉजिटिव उस एक्सटेंट तक रह लो तो फिर नहीं भी है। तो देखते हैं यार क्या होगा, अगर अच्छा हो गया बहुत अच्छा, देखते हैं क्या होगा, अगर हुआ भी तो भी आई वॉन्ट फील कि क्या क्या नहीं, बिकॉज प्रैक्टिकली देखें तो एक साल में निकालना इतना वो तो नहीं था, बिकॉज एज अपना देखें तो 11th 12th का जर्नी, राइट? तुमने कुछ खास नहीं उखाड़े तुम्हारे स्कूल में, देखो आई स्टार्टेड, हाँ, नेगेटिव टॉकिंग, सो नो नेगेटिव टॉक्स, राइट? सो माई फ्यूचर वर्जन, आई लव यू, ओके? या, आई विल लव यू सो मच। अभी तक तो मैंने अपने अंदर इतना सेल्फ लव डेवलप नहीं किया है, बिकॉज टाइम तो लगेगा यार, जो कीचड़ उस पर आया है ना, वो लेयर्ड वाला केक जैसा, उसको हटाने में टाइम तो लगेगा। बट आई एम वेरी श्योर कि तुम खुद को बहुत प्यार करोगी, और देखना है तुम बहुत सक्सेसफुल बनोगी। सो या, दिस इज़ द टाइम टू एंड दिस वीडियो। दिस इज़ मी signing off from 2025.